कलयुगी पिता दी काली करतूत, 7 साल दी बेटी नाल कतलियां, बेटी दी कबर ते मां दे अथरू, प्यार ते ममता दा रिश्ता जिथे किसी भी मां बाप ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਜਿਹੀ ਨੀਵੀਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਜਿੱਥੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਜਿੰਦ ਜਦ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਬ ਉੱਠੇ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸਾਂਬੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਤੀ 'ਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਪਈ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸ਼ਵ ਜੋ ਕਿ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਗਦੋ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਵ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਲਲਿਤ ਮਹਿਤੋ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਪਣੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਂਚਲ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਕੂਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਦ ਬੱਚੀ ਨੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੇਲੇ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਲਲਿਤ ਮਹਿਤੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਣੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਦਿਲਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਉਲਟਾ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਖੇਡਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਸੋ ਕੇ ਲੋਰੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਂਚਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜ ਨਾ लुटी जावे। कुछ नहीं था, बस छोटे मोटे लड़ाई के कारण दारू पी के मेरे बच्ची के स्कूल से उठा कर ले गई। नहर में लेके मेरे बच्ची से बात भी करवाई एक बार बात करने के बाद मेरे को दोबारा बात नहीं करवाई। बोला कि मैं दूसरे बच्चे के लेने जाने लग रही, तेरे को जो करना कर ले। कितने दिन हो गए थे? शनिवार 1 बजे के बाद है, 10 बजे के बाद है सर। तो अब क्या हॉस्पिटल लेके तो कुछ नहीं, बस केला खिलाते थे, मेरे बेटी से बात भी करवाया उसने। मेरे बेटी बोला मम्मी पापा केला दे रहा, मेरे को केला खा रहा हूँ। उसके बाद उसने फोन छीन लिया, धक्का दे के बस चलते रहेगी दरिंदे ने। अब क्या आपकी क्या मांग क्या है? फांसी के सजा दो, और क्या चाहिए? ऐसा पति से बिना पति के रह लेंगे, फांसी के सजा दो उसको। मेरे लक्ष्मी बेटी के उठा ली घर से। परिवार में कौन कौन है आपके? 2 बेटा है, 2 बेटी थी मेरे। यहाँ कोई भी नहीं, सब बिहार में है, मैं अकेले रहती थी यहाँ। तो पति को अब सजा मिलनी चाहिए। करी से करी सजा मिलनी चाहिए इसमें दरिंदे को। तो क्या उम्र थी बच्चे की? 7 साल के मेरे बेटी ने। क्या नाम था उसका? हाँ चल रहा।
सबसे लाडली बेटी थी मेरा, घर में सबके लाड करती थी बहुत। यहाँ कहाँ पे रहते थे और मूलभूत कहाँ से हैं आप? कुरुक्षेत्र रहती थी, अब केरी केरी मरकंडा में रहती हूँ मैं। हाँ। तो डेड बॉडी कहाँ मिली? पता नहीं उस सर के फोन आया था कि मेरे को नहीं पता इस बात को। सामने आया जो बच्ची का है। सर ये रहने वाले मधुबनी बिहार के हैं और करीब 15 साल से खेड़ी मारकंडा कुरुक्षेत्र में रह रहे थे। तो इनका हस्बैंड वाइफ का आपस में झगड़ा रहता था काफ़ी टाइम से। जो हस्बैंड काम कुछ करता नहीं था, घर पे रहता था, तो इस चीज़ से परेशान होके बच्चों ने और इसकी मिसेज ने भाई बोला, भाई अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो घर से आराम से बैठ जाओ, कुछ कमा नहीं रहे हो तो, लेकिन झगड़ा मत करो। तो इनकी कहा सुनी चलती रही। तो उस रंजिश में इसने अपना बैलेंस, दिमागी बैलेंस हो गया होगा इसका। तो इसने स्कूल से ये बच्ची सुबह ली, स्कूल सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने गई हुई थी, वहाँ से इसने बच्ची को लिया टीचर से, भाई आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए बोलकर। और ये फिर मिर्ज़ापुर के पास बागड़ा नहर पे चला गया। बागड़ा नहर के पास इसने इससे अपनी मम्मी से बात करवाई के बाद इसको वहाँ रास्ते में इसने केला वगैरह भी खिलाया। फिर इसने वहाँ से उठा के इसको एकदम से फेंक दिया नहर में। ये प्राथमिक दृष्टि में क्या देखा गया? प्राथमिक में तो बस ये आपसी कलेश ही है, घर का ही इनका आपस का झगड़ा है, झगड़े की वजह से है, यही मेन है रीजन। ज्यादा डेड बॉडी रिकवर हो गई है सांबी से, नहर से, बागड़ा नहर से, पोस्टमार्टम करवाया, आगे करवाया। आगे उसको जुडिशल पेश कर दिया था, अभी वो जेल में है जुडिशल। तो आगे इसमें कार्रवाई अभी चल रही है। और बच्ची की उम्र और नाम? उम्र है 7 साल, नाम है आंचल कुमारी। 7 साल की एक मासूम बेटी थी आंचल, जिसको उसी के पिता द्वारा जिंदा कुरुक्षेत्र नहर में फेंक दिया गया था। उसके बाद लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हमारी टीमें लगी हुई थी, लेकिन आज सांबी पुल से जो आंचल है उसका शव मिल गया, जिस पर उसकी माता ने मौके पे पहुंच के शिनाख्त की थी। और फिलहाल एसएचओ सदर कुरुक्षेत्र मौके पे हैं और इसको डेड हाउस में लेकर आया गया। इसके बाद पोस्टमार्टम करा के परिवार के हवाले इस बच्ची को सौंप दिया जाएगा। किस तरीके सूचना मिली प्रकट जी? ये आज सुबह एसएचओ निगदू द्वारा मैसेज मिला था कि निगदू सांबी गांव से एक लाश मिली है, तुरंत टीम के साथ पहुंचे, जाके देखा तो ये वही बच्ची आंचल थी जिसको उसी के पिता ने नहर में फेंका था। प्रथम दृष्टि से क्या देखा गया? जो डेड बॉडी थी क्या? कुत्ते काफी हद तक शव को नोच चुके थे और जैसे उसने घेरा था वही चीज, वर्दी में कपड़े, सभी चीज वो सेम मिली। कारण क्या लग रहा है? बेटी दोनों जियों का आपसी झगड़ा था, लेकिन उस झगड़े की बेटी बेचारी मासूम चढ़ गई, जो नहीं होना चाहिए था। तो ये चीजें बारह। तो क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? बस पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, इस तरह के जो भी होगी सख्त से सख्त सजा की अपील सभी कर रहे हैं और होनी चाहिए। क्या उम्र है लड़की की? लड़की 7 साल की थी। कहाँ की रहने वाली? ये वैसे तो बिहार के हैं, लेकिन फिलहाल कुरुक्षेत्र खेड़ी मारकंडा के अंदर रहते हैं। अब कहाँ लाया गया? अब कल्पना चावला करनाल के अंदर लाया गया। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।